فلم دی فارم ایک امریکی ہارر اور تھرل فلم ہے جو انسانیت، بقا اور اخلاقیات جیسے موضوعات کو نہایت خوفناک انداز میں پیش کرتی ہے۔ یہ فلم 2018 میں ریلیز ہوئی تھی۔ فلم کی کہانی ایک نوجوان جوڑے نورا اور ایلک کے گرد گھومتی ہے جو ایک دیہی علاقے میں راستہ بھٹک جاتے ہیں۔ وہ ایک ایسے فارم نما مقام پر جا پہنچتے ہیں جہاں لوگوں نے جانوروں کے نقاب پہنے ہوئے ہیں اور اصل حقیقت یہ ہے کہ وہاں انسانوں کو جانوروں کی طرح پالا اور ذبح کیا جاتا ہے۔ مردوں کو گوشت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جبکہ عورتوں کو دودھ اور افزائش نسل کے لیے قید رکھا جاتا ہے۔ یہ فلم روایتی سلیشر ہارر نہیں بلکہ ایک ڈارک سوشل کامنٹری بھی ہے۔ انسان اور جانوروں کے درمیان طاقت کا فرق، ظلم اور استحصال، بقا کی جدوجہد، معاشرتی منافقت۔ فلم ایک ایسا سوال چھوڑتی ہے، اگر انسان خود جانوروں جیسا سلوک برداشت کرے تو کیسا محسوس کرے گا؟ رات کی سیاہی ابھی مکمل طور پر نہیں اتری تھی مگر شام کا نارنجی رنگ آہستہ آہستہ آسمان سے مٹ رہا تھا۔ لاس اینجلس کی مصروف شاہراہوں سے نکل کر جب ایلک اور نورا کی گاڑی سنسان دیہی سڑکوں پر پہنچی تو فضا یکسر بدل چکی تھی۔ شہر کا شور پیچھے رہ گیا تھا اور اب صرف گاڑی کے انجن کی ہلکی سی گونج اور دور کہیں جھینگر کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ نورا گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ لمبی ویران سڑک، دونوں طرف پھیلے کھیت اور کہیں کہیں پرانے درخت جو اندھیرے میں سائے کی طرح بکھرے تھے۔ ہم شاید راستہ بھٹک گئے ہیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ ایلک نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی۔ جی پی ایس کہہ رہا ہے یہی راستہ ہے، فکر مت کرو، بس تھوڑا سا آگے۔ مگر نورا کے دل میں ایک انجانی بے چینی پیدا ہو چکی تھی۔ اس سڑک پر کچھ عجیب سا تھا، جسے خاموشی بھی انہیں دیکھ رہی ہو۔ چند منٹ بعد انہیں ایک پرانا اسٹیشن نظر آیا، لکڑی کا بنا ہوا ڈھانچہ جس کے بورڈ پر رنگ اکھڑ چکا تھا، جگہ بند تھی، دروازے پر تالا لٹک رہا تھا۔ مجھے باتھ روم جانا ہے، نورا نے بے صبری سے کہا۔ ایلک نے کندھے اچکائے۔ جلدی آنا، میں یہیں ہوں۔ نورا عمارت کے پیچھے گئی۔ وہاں ایک پرانا سا کیمپ لگا ہوا تھا جسے کوئی جلدی میں سب کچھ چھوڑ کر چلا گیا ہو۔ زمین پر ایک بٹوا پڑا تھا، پاس ہی ایک بند موبائل فون۔ عجیب ہے، وہ بڑبڑائی۔ اس نے بٹوے کو پلٹ کر دیکھا مگر اندر کچھ خاص نہ تھا۔ موبائل فون بھی بند تھا۔ اس نے چیزیں وہیں چھوڑ دی۔ اسے جلدی تھی۔ جب وہ واپس مڑی تو لمبی گھاس کے درمیان کچھ سفید سا چمکا۔ وہ جھکی اور چند لمحوں تک ساکت رہ گئی۔ وہ ایک انسانی کھوپڑی تھی۔ نورا کا سانس رک گیا۔ اس نے فوراً نظریں ہٹا لی، یہ شاید جانور کی ہو۔ اس نے خود کو تسلی دی مگر دل جانتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے۔ وہ تیزی سے گاڑی کی طرف لوٹی۔ راستے میں کچھ دور ایک گاڑی کھڑی تھی، اس کا بونٹ کھلا ہوا تھا۔ ایک ادھیڑ عمر عورت اس کے پاس کھڑی تھی۔ ایلک نے گاڑی روکی۔ مدد چاہیے؟ عورت نے سر ہلایا۔ گاڑی بند ہو گئی ہے۔ ایلک اپنی گاڑی اس کے قریب لے گیا۔ نورا گاڑی میں بیٹھی رہی۔ عورت نے اچانک نورا کی طرف دیکھا۔ تم اس کے ساتھ شادی شدہ ہو؟ نورا نے مختصر جواب دیا۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں۔ عورت کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ آج کل کے لوگ ذمہ داری کا کوئی احساس نہیں۔ نورا کو غصہ آیا مگر اس نے جواب نہ دیا۔ ایلک گاڑی ٹھیک نہ کر سکا۔ عورت ناراض ہو گئی۔ نورا نے دروازہ کھولا۔ جب وہ وہاں سے نکلے تو نورا نے پیچھے مڑ کر دیکھا، عورت اندھیرے میں کھڑی تھی جیسے ان کا پیچھا کرتی نگاہیں۔ کچھ دیر بعد انہیں ایک چھوٹا سا ڈائنر ملا۔ اندر روشنی مدھم تھی، چند لوگ بیٹھے تھے، خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ وہ ایک میز پر بیٹھ گئے۔ نورا نے محسوس کیا کہ ایک آدمی مسلسل انہیں گھور رہا ہے۔ اس کی نظریں غیر معمولی تھیں، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو۔ نورا بے چین ہو گئی۔ چلو چلتے ہیں۔ جیسے وہ دروازے کی طرف بڑھی، وہ آدمی اٹھا اور دھیرے سے بولا، تم یہاں محفوظ نہیں ہو۔ نورا نے طنزیہ مسکراہٹ دی۔ شکریہ، مگر ہم ٹھیک ہیں۔ اور وہ باہر نکل گئے۔ ایلک نے کہا، مجھے اس آدمی کی بات عجیب لگی۔ نورا نے ہنستے ہوئے کہا، بس کوئی پاگل ہوگا، مگر اس کے دل میں اب بھی وہ جملہ گونج رہا تھا۔ گیس کا تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ خوش قسمتی سے انہیں گیس اسٹیشن مل گیا۔ ایلک نے
कैशियर से रात गुजारने की जगह पूछी। आगे कुछ केबिन है, उसने मुख्तसर जवाब दिया। कुछ देर बाद एक जंगल नुमा इलाके में पहुंचे जहां लकड़ी के पुराने केबिन कतार में खड़े थे। जगह सुनसान थी। नूरा ने सरगोशी की, मुझे जगह पसंद नहीं। अचानक आदमी अंधेरे से नमूदार हुआ। उसका चेहरा टेढ़ा सा था, जैसे किसी हादसे का निशान हो। खुश आमदीद, उसने मुस्कुराकर कहा। नूरा के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। एलेक ने किराए की बात की। मालिक ने उन्हें केबिन दिखाया। अंदर सब कुछ बज़ाहिर आम था, मगर नूरा को अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। ऊपर वाले बंक बेड पर धब्बा सा था, जिसे अंधेरे में वाजिया न देखा जा सका। रात गहरी हो चुकी थी। दोनों सो गए, मगर बिस्तर के नीचे कोई और भी मौजूद था। एक शख्स जिसने भेड़ का मास्क पहन रखा था, खामोशी से लेटा था। उसकी सांसें मध्यम थी। जैसे ही कमरा मुकम्मल खामोश हुआ, वो आहिस्ता से बाहर निकला। वो बिस्तर के पास खड़ा हो गया। चांदनी की हल्की सी रोशनी इसके मास्क पर पड़ी और कहानी ने एक तारीख मोड़ लिया। रात की स्याही अभी बाकी थी जब नूरा की आंख खुली, मगर ये वो कमरा नहीं था जहां वो सोई थी। उसके गिर्द लोहे की जाली थी, तंग सी जगह, जैसे किसी जानवर का पिंजरा हो। जमीन सर्द थी, फिजा में मिट्टी और नमी की बू थी। उसने घबराकर आवाज़ दी, एलेक। कोई जवाब न आया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जाली को हिलाने की कोशिश की, मगर वो मजबूत थी। दूर कहीं कदमों की आहट सुनाई दी। फिर एक साया उसके सामने आकर रुका। वो एक शख्स था, मगर उसने बकरे का मास्क पहन रखा था। उसकी आंखें मास्क के सुराखों के पीछे से बेहिस नजर आ रही थी। उसने बगैर कुछ कहे पिंजरे को लात मारी, जिसे खामोश रहने का हुक्म दे रहा हो, फिर मुड़कर चला गया। नूरा की सांसें तेज हो गई। उसे अंदाजा हो गया था कि ये सब ख्वाब नहीं। कुछ देर बाद उसे एक ट्रॉली पर रख कर खींचा गया। आंखों के सामने धुंधला सा मंजर था, मगर वो देख सकती थी कि ये जगह किसी देही फार्म जैसी थी। चारों तरफ खेत, लकड़ी के बाड़े, गोदाम नुमा इमारतें और उनके दरमियान चलते फिरते लोग। ये सब के चेहरों पर जानवरों के मास्क, कोई मुर्गी के मास्क में था, कोई गाय के, कोई खरगोश के। सब खामोशी से अपने काम में मसरूफ थे, जैसे ये सब मामूल की बात हो। नूरा को एक अस्तबल नुमा जगह पर बंद कर दिया गया। वो पूरी तरह समझ चुकी थी वो किसी खौफनाक जगह पर कैद है। दूसरी तरफ एलेक भी होश में आया। वो भी एक पिंजरे में था। उसके साथ मजीद मर्द कैद थे। सबके चेहरों पर खौफ और बेबसी थी। दरवाज़ा खुला। चंद नकाबपोश लोग अंदर दाखिल हुए। उनकी हरकत मुनस्सिम थी, जैसे कोई बाकायदा निज़ाम हो। एलेक ने फरार की कोशिश की, मगर फ़ौरन बेहोश कर दिया गया। जब वो दोबारा जागा तो खुद को एक और जगह पाया, जहाँ दीवारों पर गोश्त लटका था। उसे अंदाज़ा हो गया कि इंसानों को जानवरों की तरह पाल रहे हैं। नूरा ने साथ वाले बाड़े में एक औरत को देखा जो कमज़ोर सी बैठी थी। उसके चेहरे पर थकन के आसार थे। ये जगह क्या है? नूरा ने सरगोशी की। औरत ने आहिस्ता से जवाब दिया, ये फार्म है, मगर यहाँ मवेशी हम हैं। नूरा के रोंगटे खड़े हो गए। औरत ने बताया कि ये लोग खुद को किसान कहते हैं। इनका मानना है कि जदीद माशरा झूठा है और इंसान असल में खुराक और वसाइल हैं। यहाँ मर्दों को गोश्त और औरतों को दूध के लिए कैद रखा जाता है। हम पर नज़र रखी गई थी, औरत ने कहा। वो वे स्टेशन, वो डाइनर, सब इनके लोग थे। नूरा को अचानक वो खोपड़ी याद आ गई। सब कुछ मंजर जुड़ने लगे। इसी दौरान वही टेढ़े चेहरे वाला मालिक अंदर आया। उसके हाथ में एक रजिस्टर था। वह हर कैदी को गौर से देख रहा था, जैसे कोई माल मवेशी की जांच करता हो। उसकी आवाज़ नरम मगर सर्द थी। पैदावार कम है, हमें मज़ीद इंतज़ाम करना होगा। नूरा ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वहाँ रहम नाम की कोई चीज़ ना थी। फार्म में एक शख्स ऐसा भी था जिसने मास्क नहीं पहना हुआ था। उसका नाम एंड्रयू था। वो ज़हनी तौर पर सादा सा लगता था। वो कैदियों से ऐसे बात करता जैसे पालतू जानवरों से की जाती है, मगर उसकी आंखों में उलझन थी, जैसे वो खुद भी मुकम्मल तौर पर इस निज़ाम को नहीं समझता। एक दिन नूरा ने देखा
एंड्रू एक कैदी औरत को दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। जब औरत ने उसे कुछ कहा तो उसके चेहरे पर गुस्सा दोनों उभर आए। उस लम्हे नूरा को अंदाजा हुआ कि ये सिर्फ जालिम ही नहीं बल्कि टूटे हुए जहनों का मजमुआ आदमी है। रात को नूरा ने दूर से किसी बच्ची के रोने की आवाज़ सुनी। साथ वाली औरत ने बताया वो एशले है, 2 साल से यहाँ है। नूरा का दिल डूब गया। हम निकलेंगे यहाँ से, उसने सरगोशी की। औरत हल्के से हंसी। यहाँ से कोई नहीं निकलता, वो हमें ढूंढ लेते हैं। मगर नूरा के अंदर अब खौफ के साथ साथ एक जिद भी जाग चुकी थी। एक रात बाड़ी के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। नूरा ने चौंक कर देखा। साए में एक जख्मी मगर जिंदा चेहरा नजर आया। एलेक, वो कमजोर था मगर उसकी आंखों में अज़्म था। हमें आज ही निकलना होगा, उसने सरगोशी की। नूरा के अंदर उम्मीद की चिंगारी रोशन हुई। दोनों खामोशी से अस्तबल से निकले। जमीन पर खुश घास बिखरी थी जिस पर चलने से आवाज़ आ सकती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम रखते हुए ट्रक की तरफ बढ़े। एलेक जख्मी था, नूरा उसे सहारा दे रही थी। ट्रक का दरवाज़ा खोला गया, चाबी लगी थी, मगर जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ आवाज़ सुनकर एक नकाबपोश आदमी ने घंटी बजा दी। पूरा फार्म जाग उठा। भागते हुए पुराने चर्च में दाखिल हुए। अंदर मोमबत्तियाँ जल रही थी। दीवारों पर बने मुक़द्दस चेहरों की जगह जानवरों के चेहरे पेंट थे। ये अपने अक़ीदे को मजहबी रंग दे चुके थे। अचानक दरवाज़ा खुला। एक गाय के मास्क वाला शख्स अंदर आया और घुटने टेक कर दुआ करने लगा। नूरा और एलेक दबे कदमों बाहर निकलने लगे, मगर वो देख लिया गया। घंटी की आवाज़ फिर गूंजी। वो जंगल की तरफ भागे। अचानक एलेक के कदम किसी फंदे में फंस गए। वो गिर पड़ा। नूरा ने उसे आज़ाद करने की कोशिश की, मगर दूर से आते कदमों की आवाज़ें करीब हो रही थी। एलेक ने उसकी तरफ देखा। भागो! नूरा के आंसू बह निकले। मगर जिंदा रहने की जबल्लत ने उसे मजबूर किया। वो भागी। पीछे चीख की आवाज़ आई, फिर खामोशी। नूरा एक बाड़े के पीछे छुप गई। उसका दिल टूट चुका था मगर वो जिंदा थी। उसने तय कर लिया कि वो यहाँ से निकलेगी चाहे कुछ भी हो। और उसी लम्हे कहानी एक नए मरहले में दाखिल हुई जहाँ खौफ के साथ इंतकाम भी शामिल हो चुका था। रात अब मुकम्मल तौर पर फार्म पर छा चुकी थी। नूरा एक टूटे हुए बाड़े के पीछे बैठी थी। उसके कानों में अभी तक एलेक की आखिरी आवाज़ गूंज रही थी। दिल टूट चुका था मगर आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ एक फैसला था, ये जगह ख़त्म होगी या मैं। नूरा दबे कदमों मर्दों के बाड़े की तरफ बढ़ी। वहाँ से हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ें आ रही थी। जाली के पीछे एक कमज़ोर सा शख्स बैठा था। उसने नूरा को देखा और आंखों से इशारा किया कि आवाज़ ना करे। नूरा उसके करीब गई। यहाँ से निकलने का रास्ता उसने सरगोशी की। आदमी ने लड़ती आवाज़ में कहा, वो लोग कैदियों को एक पुरानी बस में लाते हैं। बस पीछे वाले शेड के पास खड़ी है। चाबियाँ मालिक के घर में होती हैं, बावर्ची खाने के पास लकड़ी की तरास में। नूरा ने सर हिलाया। अगर मैं बच गई तो तुम्हें भी निकाल लूँगी। आदमी की आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी झलक उभरी। नूरा आहिस्ता आहिस्ता पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ी। वहाँ कई गाड़ियाँ खड़ी थी। एक नकाबपोश शख्स की पुश्त उसकी तरफ थी। वो किसी औजार में मसरूफ था। नूरा के हाथ में एक भारी हथौड़ा आ गया, शायद वहीं पड़ा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। एक लम्हे के लिए वो रुकी, क्या वो ऐसा कर सकती है? फिर एलेक का चेहरा उसकी आंखों के सामने आया। उसने हिम्मत करके वार किया। नकाबपोश शख्स जमीन पर गिर गया। नूरा ने इसका मास्क नहीं उतारा। वो जानना नहीं चाहती थी कि अंदर कौन है, मगर आवाज़ सुनकर तीनों नकाबपोश लोग उसकी तरफ लपके। नूरा एक गाड़ी में कूद गई। चाबी अंदर ही थी। उसने इंजन स्टार्ट किया और सीधी लकड़ी की बाड़ की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। टक्कर की आवाज़ गूंजी। बाड़ टूट गई, मगर चंद लम्हों बाद गाड़ी झटका खाकर रुक गई। गैस ख़त्म हो चुकी थी। नूरा ने बेबसी से स्टीयरिंग पर हाथ मारा। पीछे से कदमों की आवाज़ें करीब आ रही थी। वो गाड़ी छोड़कर दोबारा अंधेरे में दौड़ पड़ी। अस्तबल के पास से गुजरते हुए उसे एशली की आवाज़ सुनाई दी, वही नौजवान लड़की जो 2 साल से कैद थी। नूरा ने दरवाज़ा खोला। चलो मेरे साथ।
ایشلے کی آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ ہمیں ڈھونڈ لیں گے۔ اس بار نہیں، نورا نے مضبوط لہجے میں کہا۔ دونوں دوڑتی ہوئی بس کی طرف بڑھی۔ بس واقعی وہاں کھڑی تھی، بڑی زنگ آلود مگر امید کی آخری کرن۔ چابیاں؟ ایشلے نے گھبرا کر پوچھا۔ میں لے کر آتی ہوں، تم یہیں رکو۔ نورا مالک کے گھر کی طرف بھاگی، کھڑکی سے اندر داخل ہوئی۔ اندر عجیب خاموشی تھی، جیسے گھر فارم کے شور سے الگ دنیا ہو۔ باورچی خانے کے پاس لکڑی کی دراز اس نے کھولا، چابیاں وہیں تھی۔ وہ واپس بس کی طرف دوڑی۔ ایشلے اندر بیٹھی تھی، کانپ رہی تھی۔ نورا نے چابی لگائی، انجن نے بھاری سی آواز نکالی، پھر خاموشی، پھر دوبارہ کوشش کی۔ اس بار انجن چل پڑا۔ نورا کے چہرے پر امید چمکی، مگر اچانک بس کے پچھلے حصے سے سرگوشیوں کی آواز آئی۔ وہ مڑی۔ پچھلی سیٹوں پر نقاب پوش لوگ خاموشی سے بیٹھے تھے، جیسے وہ پہلے سے انتظار کر رہے ہوں۔ بعد میں فارم کے مرکزی ہال میں لمبی میز سجی ہوئی تھی۔ سب نقاب پوش لوگ بیٹھے تھے اور میز کے اوپر 2 لڑکیوں کے منہ میں سیب تھے اور وہ روسٹ کی ہوئی وہاں پر ٹیبل پہ رکھی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی تقریب ہو۔ مالک نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ روشنی مدھم ہوئی اور فارم کی خاموشی دوبارہ ویسی ہی ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کھیتوں پر صبح کی پہلی روشنی پھیلنے لگی۔ نئی گاڑی سڑک پر آ رہی تھی، ایک اور جوڑا راستہ بھٹکا ہوا، اور فارم تیار تھا۔